Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 3 demand. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 5 of the chapter. So before starting the today's current portion, let us have a short summarization regarding the previous portion. What we have seen on the previous video. So previously we have seen about the expectations of the law of demand. Law of demand, from that given goods and the special preference of goods. After that we have seen the expansion and construction of demand in a very detailed manner with the help of a diagram. So let us have a short discussion on the portion. Given good. What is given good? Given goods means it is an inferior goods. The quality of the goods which are little low than the superior good are considered as given goods or inferior goods. Why the inferior goods are saying to be given good? Because the concept of the given goods, that whenever the real income of an individual is rising, at that moment he prefers to buy the superior quality goods, not the inferior quality goods. This concept was being given to us by the Robin Giffen. That's why the name given has been given to the inferior goods as a given good concept. So in this concept, as I said, whenever the price of the inferior goods go down and the rise of the income is being seen in the people, it means the real income, purchasing power increases. Due to that, the people will not go to buy the inferior good. Instead of that, they will buy the portion of the superior good. For example, we have seen the vanaspati ghee and the pure ghee. After that, we have seen the juar or bajra. From them, any one you can consider. And if the price of the juar is going down and then the real income rises of a customer, then he will not buy more juar, but he will move to the superior good, which means the wheat. In this manner, whenever the real income rises, even through the rate of the inferior goods go down, then also people will not prefer to buy the inferior good. They will go for the superior good. In this way, we can say that the law of demand does not work on the portion of the given goods. So after that, we have seen the special preference of customer. So somewhere we are economist. Economist means we are having the habit of having the preference, or we can say the preference of some particular goods. For example, we prefer for some good more. If their price goes up or down, then also we does not consider it as a big deal. Then we consider that portion only. For example, as we see in the chocolates, okay. So if you are having a taste of chocolate, what will be your special preference? So for some it can be Kit Kat, for some it can be Pop, for some it can be 5-star. They will love to buy that particular product only. They will not go for the other one. So in this manner, whenever you are associated with one product, that special preference that I want that only, it means you are habituated to that portion. Even we can take the example of Maggi. Okay, there are so many companies of the noodles. For example, we can say that Ippy is there, Top Ramen is there, other than that Maggi is there, Patanjali also newly introduced the noodles, but still people prefer to buy the Maggi. Why? Because they are habitual to the Maggi. When it came to 10 rupees to 12 rupees, then also people buy that only. So in this manner, whenever the price rises, the demand for particular product does not goes down, which are having the special preference. In this manner, we can say that the law of demand doesn't work on the special preference also. After that, here we are completing the goods which are not included in the law of demand. After that, we have seen about the expansion and the construction of the demand.
First of all, before knowing expansion and contraction of the demand, the concept must be clear. What is the concept? In the concept, we have seen that whenever the price changes, but the other factors are constant, the 5 factors are constant, remain unchanged, and only the price change, which means only the law of demand is applicable there. Only price change, due to that when the demand is changing, it is considered as the law of demand. In law of demand, whenever the demand goes up, which means the demand expand, that is expansion, and when the demand gets low, it is considered as the contraction. So in this manner, the schedule shows us the increase in the demand and the decrease in the demand. For that, we have seen a table. In table, there was 5. Price of the milk 5, 4, 3, 2, 1, and the demand, when the rate was 5, the demand was 1, when the rate was 4, the demand was 2, when the rate was 3, the demand was 3, when the rate was 2, the demand was 4, and when the rate came to 1, the demand was 5. This is the demand schedule. From this, we have taken the portion of 3 as an initial price. It means the common price. No price rise and not price got low only. The normal price. When the normal price is 3 rupees, the demand is also 3 rupees. So we will allocate as a in the demand schedule only. जो table है उधर ही उसको A लिख दो. After that, if you have seen, we have to go first up. Why up? Because the portion 5 and 4 are on the top. So when 3 to 4, the price rose up, and 4 to 5 the price rose. So at the time of the price rising, the demand, what happened? It came to 3 to 2 and 2 to 1. It means the demand got low. So the first 5 to 1, that is the B portion, we have indicated because we saw it second. Now we are going to see the third portion, when the price got low, which means the price got less. So 3 to 2, it means the demand become 4, 3 to 4, and 3 to 1, it means the demand become 3 to 5. So in this manner, when the price got down, the demand rose up. So now let us see that in a very scheduled manner. So first of all, you have to make the y-axis and the x-axis and the initial point of origin, put the point y and x, then allocate the number. For example, the price 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in the y ray. Why? Because it is the cause. Cause is being seen up in the y. What is the effect? Effect is the demand. So we have taken 5. After that, one extra point 6. Again, we have to go for the portion of the x. In that also, we have to allocate the point 1, 2, 3, 4, 5 and one more extra 6. After allocating all the portion at the 5, what was the demand? 1. So 5 and 1 midpoint we have to go, and 4, 2 and 3, 3, 2, 4 and 1, 5. In this manner, we have made the demand curve. After making the demand curve, what is the A there? 3, 2, 3. So round the 3 and keep it as a A. What is the B there? 5 to 1. So that 1 point will be A. What is the C? That is 5. So at last 5 we will put it as C. Now take the midpoint A. After taking A, you have to see after 3, 2 and 1, that is the construct part. Construct part means the demand is getting low. So you have to write that it is the construction of demand. And then again taking the A, now you have to see downward portion 4 and 5. From 3 the demand is going to 4 and 5, which means the expansion of the demand. So in this manner we can say that in the same demand curve, the expansion and the contraction can be seen. Second thing that you have to remember, whenever the construction is seen, it is seen on the upward ray. The ray of the construction always goes up. And what is the expansion? The ray of the expansion always goes down. Why? See, 3, 4 and 5. It means connecting it go down. 3, 2 and 1. It goes up. That's why the construction part is always upward ray and the expansion is the downward ray. So in this manner, we have seen the expansion and contraction in a very detailed manner. I hope you all have understood the portion in a very well manner. So now let us move on with the line-to-line explanation of the chapter from the textbook in the further PDF.
So students, now let us move on with the today's portion in a very well manner. So last time we have seen about the expansion and the construction of the demand. So today we are here to see the increase and decrease in demand. So before starting the portion, let us move on and read the paragraph and know about the theoretical portion of increase and decrease in demand. When one factor or some factors other than price change in favor of demand of a good, then there is an increase in demand, which is caused by rightward shift of the demand curve. If this factor change against the demand, that then at the same price demand decreases at the entire demand curve shifts to the left. Hence, increase and decrease in demand is caused by the determinants other than price. So कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जब अभी तक हमने क्या एग्जांपल देखा लॉ ऑफ डिमांड का कि प्राइस सिर्फ चेंज होता है, बाकी के सारे चीजें सेम है, बट अब उसका ऑपोजिट क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग में बहुत सारी अलग टॉपिक्स में, तो क्या वो काम नहीं करता है? तो वो काम करता है। जब प्राइस चेंज नहीं होता है, बाकी के 5 फैक्टर में से सारे के सारे चेंज हो गए या उसमें से 1 या 2 चेंज हुए या 1 ही चेंज हुआ, ऐसे मान लेते, कोई भी एक फैक्टर्स या 5 फैक्टर्स या सारे के सारे चेंज होने की वजह से बट प्राइस सेम है, और ये 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक का चेंज होना जो डिमांड के फेवर में है, फेवर में इन द सेंस पॉजिटिव फेवर में देखा जाए, तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, जिसे हम इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। उसी तरीके से जैसे उसी फैक्टर्स के चेंज फिर से होने से जिससे डिमांड घटने लगे, तो उसे डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। सो इस तरीके से डिमांड कर्व में ही, अभी तक हमने स्लोप इस तरीके से कहा, अब हम स्ट्रेट स्लोप देखेंगे। डिमांड कर्व में ही इंक्रीज या डिक्रीज देखा जा सकता है, बट उसका प्राइस सेम होता है, सिर्फ अदर फैक्टर्स चेंज होने से ये पोर्शन देखा जाता है। अदर देन प्राइस का जो हमने टॉपिक देखा, उसके अंदर जो टॉपिक्स बताए गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर इनकम ऑफ द कस्टमर, नेक्स्ट फ्यूचर प्राइस के एक्सपेक्टेशन, फोर्थ प्राइस ऑफ द रिलेटेबल गुड्स एंड फिफ्थ है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये 5 फैक्टर में से कोई भी फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड जब कम या ज्यादा होता है, उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। इसमें भी शेड्यूल दिया गया है। सो लेट अस सी द शेड्यूल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो बिफोर सीइंग द शेड्यूल, हमें सबसे पहले क्या देखना है? तो सबसे पहले हमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बारे में देखना है। सो आई एम यूजिंग द ब्रश एंड ट्राइंग टू गिव यू अ प्रॉपर पोर्शन। सो फर्स्ट जो है कहीं ना कहीं जो है प्राइस देखा जा रहा है, सेकेंड है डिमांड ऑफ द कमोडिटी, थर्ड है नोट। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ प्राइस देखो तो सब में सेम प्राइस है, 3 रुपीज, 3. ठीक है, 5 बार 3। अब डिमांड 1 से लेके 2 पे गया, 2 से लेके 3 में गया, 3 से लेके 4 गया, 4 से लेके 5 गया। तब हम इसको भी एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, यानी ये पॉइंट ए कंसिडर कर लेते। ठीक है, पॉइंट ए कंसिडर हमने किया, उसमें जब 3 रुपीज का रेट था तो 3 रुपीज का डिमांड देखा गया। वही जैसे 3 रुपीज का ही रेट में अचानक से डिमांड 2 में गया और 1 में गया, तो हमें उस 1 के पॉइंट को क्या करने का? उस 1 के पॉइंट को बी कंसिडर करने का। फिर हमने ये देखा कि 3 में से अचानक से 4 में गया और 5 में गया डिमांड, जबकि प्राइस उसका सेम 3 है, उसको हम कंसिडर करेंगे सी। ये हुआ डिमांड का शेड्यूल। शेड्यूल में हमने देखा कि प्राइस जो है सारे पोर्शन के सेम देखे गए, सिर्फ डिमांड जो है कभी कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है। सो जो कम हो रहा है उसे डिक्रीज इन डिमांड बोला जाएगा और जो ज्यादा हो रहा है उसे इंक्रीज इन डिमांड बोला जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे जो पोर्शन है ये देखा गया है। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पोर्शन। फर्दर पोर्शन यानी ये जो शेड्यूल है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो डिटेल में शेड्यूल देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन डालना पड़ेगा। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बाद ओरिजिन डाल के वाई और एक्स को इंडिकेट करना पड़ेगा। करने के बाद वाई में क्या आएगा? तो वाई में प्राइस आएगा। प्राइस इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है? तो प्राइस यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए वाई में रखा गया। अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम आपने लॉ ऑफ डिमांड में तो वो इंडिपेंडेंट दिखाया था, अब इसमें डिपेंडेंट क्यों?
क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में जो डेटा बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है, उसमें प्राइस को इंडिपेंडेंट माना जाता है। बट जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जहां बाकी के फैक्टर्स काम करते हैं, वहां पे प्राइस को डिपेंडेंट माना जाता है और डिमांड इंडिपेंडेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपका भी सवाल आएगा तो मैम हम एक्स में उसको प्राइस को लिखे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें डिपेंडेंट वाई में दिखाना है, इंडिपेंडेंट एक्स में दिखाना है। बाकी के डायग्राम में सिर्फ जो वो पोर्शन यानी लॉ ऑफ डिमांड में हमें इंडिपेंडेंट को वाई पे और डिपेंडेंट को एक्स पे दिखाना है। इवन हमने ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में देखा था। सो रिमेंबर दिस पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो हमें सबसे पहले ज्यादा लोड नहीं लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस का स्लैब सेंटर में आएगा, इसलिए प्राइस यहाँ लिखना है। किसमें? जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। और डिमांड का जो है यहाँ से इस तरीके से कनेक्टिविटी देखा जाएगा, इसलिए यहाँ रखा जाएगा। सो सेम आप ये मानो कि दोनों लॉ ऑफ डिमांड हो के ना हो तो प्राइस यहाँ वाई पे आएगा और डिमांड एक्स पे आएगा। इतना डेप्थ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो प्राइस के बाद हमें सेकेंड डिमांड लिखना है। अब हमें स्केल लेना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर हमें डिमांड का स्केल देना है 1 2 3 4 5 6 लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इधर लिया नहीं, बट ले लेना चाहिए। उधर भी 6 इधर भी 6, थोड़ा एक एक्स्ट्रा गैप रखना चाहिए। सबसे पहले प्राइस क्या है? तो सारा प्राइस 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 में एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो फिक्स्ड है, ठीक है। प्राइस जब फिक्स्ड था उस टाइम पे डिमांड आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 में 3, ठीक है, 3 में 3 का पोर्शन देखा गया तो उसको सर्कल करके हम डालेंगे ए, ठीक है। फिर 3 में हमें क्या दिखा? तो 3 में हमें दिखा फर्स्ट 1, तो उसे हम डालेंगे बी, ठीक है। फिर 3 में आया सी, तो फिर उधर हम डालेंगे सी, ठीक है। 3 में ही 5, तो पोर्शन हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने के बाद हम ये बोल सकते क्यों हमने यहाँ पे इस तरीके से कि आपको पता है हम ये जो पोर्शन है 6 हो तो 6 के सामने 1 को हम एलोकेट करेंगे, 5 हो तो 5 के सामने 2 एलोकेट करेंगे, यानी जो प्राइस होता है उसके सामने ही डिमांड किया जाता है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें 3 के सामने ही सारा पोर्शन दिखाना है, इसलिए हमने 3 में स्ट्रेट लाइन करके वहां पे बी ए सी एलोकेट कर दिया। अब सेम हमने जो एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन में देखा, सबसे पहले हमें ए कंसीडर करने का। ए से बी तक का रे कैसे गया? तो पीछे गया, तो वो पीछे गया तो क्या हुआ 3 से 1 गया, तो 3 से जो 1 गया इसका मतलब डिक्रीज हुआ, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। अब वैसे ही ए से अगर हम सी की ओर बढ़े तो वो क्या हुआ 3 से लेके 5 की ओर बढ़ा, यानी ये हुआ इंक्रीज इन डिमांड। तो जब भी डिमांड कर्व के अंदर रे जो है अंदर की तरफ यानी लेफ्ट साइड जाए, इसका मतलब वो क्या हुआ? डिक्रीज इन डिमांड। और वही अगर वो राइट साइड जाए तो वो इंक्रीज इन डिमांड माना जाएगा। तो यहाँ पे इस पोर्शन में हमें D2, D1 और D3 करना है। क्यों करना है? देखो D2, D1 और D3, जो A था वो D1 डिमांड कर्व 1, जो B है वो डिमांड कर्व 2 और जो C है वो डिमांड कर्व 3 माना जाएगा। सबसे पहले हमें ये कर्व करना है, फिर कर्व से इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देखा जाएगा। सो यहाँ खत्म होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो लेट अस सी द फर्दर पोर्शन यानी थियोरेटिकल पोर्शन को डिटेल में देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। इन द अबाउ शेड्यूल एंड डायग्राम, initial demand curve is G1 D1 where at price of 3 demand is 3 unit. This is shown at the point of A on D1 D1 when price remain constant at 3 but one or some of the factors change in favor of demand, then the demand curve shifts to the right D3 D3 and the demand increase to 5 यूनिट। सो शेड्यूल में हमने ये देखा, शेड्यूल में हमने क्या देखा कि डिमांड का जो कर्व है वो सबसे पहले ए, जब इनिशियल प्राइस 3 रुपीज का था तब उसका डिमांड भी 3 देखा गया, बट
प्राइस तो सेम 3 रुपए का ही था, बट कुछ फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से अचानक से डिमांड में इंक्रीज देखा गया। तो 3 से लेके 5 तक का डिमांड इंक्रीज हुआ। तो 3 से लेके D1 से लेके, तो यहाँ पे D1 से लेके D3 तक का जो पोर्शन गया, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? तो उस पोर्शन को हम डिमांड का इंक्रीज इन डिमांड मानेंगे। हर बार आपने एक चीज नोट किया होगा कि हर बार सबसे पहले इंक्रीज वाला पोर्शन और एक्सपांशन वाला पोर्शन बताया गया। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चीजें पहली ली जाती है, फिर नेगेटिव का अज्यूमशंस देखा जाता है। सो इंक्रीज डिमांड में होता है तो एक पॉजिटिव इफेक्ट है, इसलिए पहले उसको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट, from the initial point A on D1, now if some or other factors change against demand, then the demand curve shift to the left D2. The demand decreases from unit 3 to 1 unit. This is deficit at the point B on D2. तो सबसे पहले अगेन हमें इनिशियल पॉइंट ए में आ जाना है। जब हम इनिशियल पॉइंट ए में आ जाते उस टाइम पे अगर एक फैक्टर या कुछ फैक्टर्स या सारे फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई कमी आती है, यानी डिमांड डिक्रीज होता है, तो D1 में से जो D2 में पोर्शन जा रहा है, यानी जो डिक्रीज हो रहा है, उसे डिक्रीज इन डिमांड माना जाता है। D1 में से D2 में गया तो कितना हुआ? 3 में से 1 में गया, यानी डिक्रीज इन डिमांड माना जाएगा। Thus, increase or decrease in demand is seen from a map of more than one demand curve. A rightward shift of the demand curve shows increase in the demand and the leftward shift shows decrease in the demand. So इसका मतलब जो डिमांड का कर्व होता है, जैसे हमने डिमांड के कर्व में एक्सपांशन और कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपांशन देखा, उसी तरीके से डिमांड कर्व के अंदर ही इंक्रीज और डिक्रीज भी देखा जाता है। अब ये जो डिमांड कर्व है, इसमें जब लेफ्ट की ओर चीजें जाएगी इसका मतलब डिक्रीज, और जब राइट की ओर जाएगी इसका मतलब वो इंक्रीज है, ये माना जाएगा। यहां कंप्लीट होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द डिमांड। सो अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. Individual demand is the demand of a good by an individual consumers at a given price at a particular point of time. The sum total of such individual demand of all existing customers in the market is called the market demand at a given price at a given particular point of time. So economics के अंदर अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड को दो तरीके से बाइफ्रिकेट किया जाता है। फर्स्ट वन है इंडिविजुअल डिमांड, सेकेंड वन है मार्केट डिमांड। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? अगर मुझे कोई चीज खरीदने की इच्छा है तो मैं कौन हुई? इंडिविजुअल। तो मेरा डिमांड क्या माना जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर प्राइस में मैं वो चीज़ खरीदने के लिए रेडी हूँ, इसका मतलब मेरा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिमांड वहाँ देखा गया। इस तरीके से मेरे जैसे ही मेरे आजू बाजू बहुत सारे खरीदने वाले लोग होंगे। जैसे मुझे मान लेती हूँ कि मुझे अभी एक डेयरी मिल्क खरीदना है, तो मेरे साथ 6 लोग और डेयरी मिल्क खरीदने आए, तो सारे लोग, मैं 2, 3 ऐसे जब सारे इंडिविजुअल लोगों को इकट्ठा किया जाएगा तो उसे मार्केट डिमांड बोला जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतने कस्टमर अभी खरीदने के लिए रेडी है। इस तरीके से गिवन प्राइस और गिवन पॉइंट के अंदर जितने इंडिविजुअल्स है वो सारे इंडिविजुअल को सब एक किया जाएगा तो उसे मार्केट डिमांड बोला जाएगा। ओवरऑल आप एक चीज खरीदो तो आप कहाँ से खरीदोगे? तो मार्केट में। आपके जैसे खरीदने वाले वहां पे ज्यादा होंगे तो सबके साथ आप एक मार्केट डिमांड देखे जाओगे, बट पर्टिकुलरली वो आपका एक इंडिविजुअल डिमांड माना जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन explanation, which means the short summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the increase and decrease of the demand. After that we have seen about the individual and market demand just meaning. So let us have a short summarization of the topic that we have seen. What is increase and decrease in demand? First of all, increase and decrease को समझने के लिए increase and decrease का मतलब जब भी डिमांड में प्राइस चेंज नहीं होता है, यानी प्राइस फिक्स्ड है, उसके अलावा जो 5 फैक्टर्स है, टेस्ट,
income, relatable goods price, future expectation and then the last one is the size of the growth। ये 5 फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर, 2 फैक्टर के सारे फैक्टर चेंज होते हैं। उस रीजन की वजह से डिमांड जैसे हाई या लो होता है उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज बोला जाता है डिमांड कर्व के अंदर। इन शॉर्ट प्राइस स्टेबल रहता है। नेक्स्ट हमने उसका एक टेबल देखा। टेबल में हमने प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसका डिमांड देखा। प्राइस हमने देखा 3, 3, 3, 3 एंड 3, 5 बार 3 लिखा हुआ था। फिर हमने डिमांड देखा 3 में 1, 3 में 2, 3 में 3, 3 में 4 एंड 3 में 5। यहाँ पे हमने एक चीज देखा, प्राइस तो 3 ही है फिर भी डिमांड 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और वही 5, 4, 3, 2, 1 की तरह डिक्रीज भी देखा जा रहा है। सेम हमने जो एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन में दिया उसी तरीके से सबसे पहले हम 3 को लेंगे और 3 में जो 3 का डिमांड है उसको मिड वैल्यू लेके उसको ऐड कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि इनिशियल में जब 3 रुपए था तब उसका डिमांड 3 देखा गया था। फिर हम उसमें से थोड़ा कम करेंगे, कम इन द सेंस जैसे भाव बढ़ता है तो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 में से जब 3 रुपीज ही रहा फिर 3 रुपीज ही रहा, कुछ फैक्टर्स चेंज हुए। ठीक है, जैसे हमने सोच लिया कि इंसान का इनकम चेंज हुआ, इनकम कम आने लगा, या हम ये बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल के भाव बढ़ने लगे तो लोगों के पास मंदी चल रही है। तो ऐसे कोई सिचुएशन में 3 में से डिमांड 2 में गया, 2 में से 1 में गया। सो हम ये बोल सकते हैं लोगों को ये लग रहा था कि फ्यूचर में इसका भाव कम होगा तो वो कम डिमांड करते, तो उस वजह से वे 3 में से 2, 2 में से 1, यानी प्राइस तो 3 ही है बट डिमांड अचानक से 3 से 2, 2 से 1 हुआ तो इसे बोला जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। वही वापिस हमें इनिशियल 3 लेना है, 3 में 3 का डिमांड, फिर हमें वो प्राइस देखना है 3 और 3 ही है बट अचानक से डिमांड कुछ फैक्टर्स चेंज हुए, यानी एक इंसान का इनकम बढ़ गया। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका भाव ज्यादा बढ़ सकता है तो लाओ मैं ले लेती हूँ, ऐसा कोई फैक्टर चेंज हुआ तो 3 में से डिमांड अचानक से 4 हुआ और 4 में से 5 हुआ। इस तरीके से डिमांड जो है इंक्रीज हुआ, उसे बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। इसमें हमने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखा कि जो 3 है प्राइस है वो तो चेंज ही नहीं हुआ फिर भी डिमांड चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो अदर फैक्टर्स में ये हो सकता है कि मैंने जैसे बोला फ्यूचर में भाव बढ़ जाएगा, ये सोच के डिमांड लोगों की बढ़ गई, या कम फ्यूचर में भाव कम हो सकता है, अभी क्यों खरीदो इस करके डिमांड कम भी हो सकता है। इसका शेड्यूल कैसे बनाना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना है, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन डालना है, फिर प्राइस क्या है, प्राइस कहीं ना कहीं कॉज है तो प्राइस तो वहां रख दिया। कॉज कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइस चलो प्रोडक्ट का चेंज नहीं हुआ तो वो तो अनचेंजेबल है तो उसको कॉज कैसे बोला जाएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ डिमांड में जो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दूसरे देखे जाते, बट वही लॉ ऑफ डिमांड जहां काम नहीं करता है वहां डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट अलग होता है। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हम कहीं ना कहीं जो है प्राइस को बोल सकते हैं और डिमांड जो है डिपेंडेंट है बट वो लॉ ऑफ डिमांड पे। तो यहाँ तो डिपेंडेंट क्या है, तो डिपेंडेंट तो कुछ भी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट क्या है, तो डिमांड है। क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से। सो इन शॉर्ट वाई एक्सिस में आपको प्राइस रखना है और एक्स एक्सिस में आपको क्या रखना है, तो एक्स एक्सिस में आपको रखना है डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में भी प्राइस वाई एक्सिस पे आता है और एक्स एक्सिस पे डिमांड आता है। वही सेम चीज को आपको याद रखना है, वही सेम चीज आप इसमें भी कर दो। ठीक है, एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट यही सेम इसमें कर दो, बाकी में जिसमें चेंज आएगा उसमें मैं आपको चेंज करना सिखा दूंगी। तो यहाँ पे आपने प्राइस रखा और यहाँ आपने डिमांड रखा। सबसे पहले हम उसको एलोकेट करेंगे, 1 2 3 4 5 था तो 6 तक कर देते। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक कर देते, 6 तक दोनों में एलोकेट कर दिया। अब प्राइस क्या था, प्राइस के रो में प्राइस क्या तो 3 था, सब में 3 था तो हम 3 में एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। 3 में हमने एक स्ट्रेट लाइन कर दिया। अब डिमांड 3 में 1, 3 में 2, 3 में 3, इस तरीके से 3 के लाइन में ही हम डॉट रखते जाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने डॉट रख के उसको कनेक्ट कर दिया यानी डिमांड कर्व तो बन गया। अब उसमें से सबसे पहले इनिशियल 3 में से 3 तो उसको ए करके सर्कल करके रख देना, जो 3 में से 1 उसको सर्कल करके बी, और 3 में से जो 5 था उसको हम करेंगे सी। तो इस तरीके से हमने सर्कल कर दिया। फिर डिमांड 1 D1, ए वाला जो स्लैब है वहां पे ऐसा लाइन करके बोलना है D1 डिमांड 1। ठीक है, फिर बी वाला डिमांड 2, फिर सी वाला डिमांड सी यानी 3। इस तरीके से 1 2 और 3 का हमने रो भी बना दिया, डिमांड का रो भी स्लोप भी बना दिया। अब हमें ये देखना है D1 में से D2 में जब रो जाता है यानी 3 2 1 यानी वो डिक्रीज इन डिमांड,
और वही 3 में से D3 में जब जाता है, D1 में से D3 में, तो वो इंक्रीज, क्योंकि 3, 4, 5 तो इंक्रीज इन डिमांड माना जाएगा। सो इस तरीके से एक डिमांड कर्व के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड अंदर जाता है उसे क्या बोला जाएगा, तो डिक्रीज। जो राइट हैंड साइड जाता है उसे क्या बोला जाएगा, तो इंक्रीज। सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट के इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है बहुत ही एक ही डिमांड कर्व में देखा जाता है, बट जब डिमांड बाकी के फैक्टर्स की वजह से कम हो तो उसे डिक्रीज, और जब ज्यादा हो तो उसे इंक्रीज बोला जाता है। नेक्स्ट हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। डिमांड को इकोनॉमिक्स के अंदर पर्टिकुलरली क्लासिफाई करना हो तो डिमांड दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। अगर मैं हूं, मुझे पर्टिकुलरली 5 स्टार खरीदना है तो वो मेरा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड हुआ। आपको क्या खरीदना है, डेयरी मिल्क खरीदना, तो वो पर्टिकुलरली आपका इंडिविजुअल डिमांड हुआ। बट मार्केट एक अकेले से चलता नहीं है, आप, मैं, हर कोई एक ही मार्केट में देखे जाते हैं, तो सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर की डिमांड जब इकट्ठा किया जाता है उसे मार्केट डिमांड बोला जाता है। तो यहां तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। इफ you have not got any portion, then watch the video again, and I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.